تو سرکار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. تو یہ کس نے کہا؟ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. اچھا سنیے، تیرے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت بڑے ہیں، ابو بکر صدیق بڑے ہیں؟ وہ تو ہیں بڑے صحابہ کرام تو ہیں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ. بھائی صاحب یار رکن یمانی کو ہاتھ لگانا جا کے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ابو بکر صدیق جب بڑے ہیں اور احمد رضا خان چھوٹے ہیں تو ہمیں تو بڑے کی بات چاہیے نا، چھوٹے کی بات تو نہیں لینی. سنیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، احمد رضا خان بڑے ہیں، ہے نا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی ہے جو احمد رضا خان نے فرمایا ہے. مطلب عشق میں انہوں نے کہا. لوگ کیسے کہتے ہیں سرکار کو معاذ اللہ مطلب زندہ نہیں مانتے، معاذ اللہ کہتے ہیں مردہ ہیں. میرے بھائی میری بات سنیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کریں نا کہ انہوں نے وہی بات کہی ہو جو احمد رضا خان نے کہا ہے. مجھے ابو بکر صدیق سے ثابت میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ، مطلب کیا مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہو لیکن مجھے دلیل چاہیے نا بھائی. سب ابھی تو عالم لوگ دلیل دیں گے نا. آپ یہاں پکڑ کے کیا دلیل آپ کو جو سنایا؟ سنیے آپ کو جو کسی عالم سے بات. اب آپ جو بات کہہ رہے ہو، آپ جو بات کہہ رہے ہو تو بغیر دلیل کی کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دلیل بھی رکھو آپ اپنے ساتھ کہ بھائی ہم اس لیے زندہ نہیں. تو آپ کو جو عالم نے بتایا نا تو ان کو بھائی دلیل بھی دو، تاکہ میں کسی کو کہوں تو میں دلیل بھی دوں. صرف کہہ دو زندہ ہیں اور دلیل بھی نہیں ہے. ایسے ہی کہ ہتھیار لڑنے کے لیے آ گیا، ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہے. بھائی لڑنے ہو تو ہتھیار رکھو ساتھ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا یہ ویڈیو میں ایک لال رومال والے متوا ہیں، یہ سعودیہ مکہ و مدینہ میں رہتے ہیں. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں. ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک بچے کو پکڑ کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے امام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو وہ اعتراض کر رہے ہیں، گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں. اور کہہ بھی رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا جو تمہارے امام نے کہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. اور وہ بچہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کو بات کرنا ہے، آپ کو حوالہ چاہیے، دلیل چاہیے، ہمارے علماء سے بات کریں، ہمارے عالموں سے بات کریں. لیکن یہ بات نہیں کریں گے، ہمیں کو پتہ ہے. آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ کا اس پر عقیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے دیکھیں امام ابو یعلیٰ کی کتاب مسند ابو یعلیٰ. امام ابو یعلیٰ یہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 3425 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. احیاء زندہ ہوتے ہیں، فی قبورہم قبر میں، سمجھ رہے ہیں، یصلون اور نماز پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسناد صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 13812 پر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد، اور یہ حدیث بالکل درست ہے. ہاں، اب اس کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے. انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور حدیثوں کے انبار لگا دیے
कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। किन की किताब? इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इनकी किताब हयातुल अंबिया आप देखें, उठाएं, सफ़ा नंबर 6 पे भी यही नकल किया है कि अल अंबिया व हयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। बाकी पूरी हदीसों के अंबार लगाए हैं कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, समझ रहे हैं। तो इनका फुल अकीदा है कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। इन्होंने पूरी किताब लिख डाली है कि हयातुल अंबिया पर, कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। इसके बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहुत बड़े यानी जलीलुल कद्र इमाम हैं, इनकी किताब, इन्होंने भी एक किताब पूरी लिख डाली अंबिया के यानी हयात पर, उसका भी नाम रखा हयातुल अंबिया। समझ रहे हैं, पूरी किताब लिख डाली है, तकरीबन 26-27 सफ़हात की किताब है, और उसमें दलीलों के अंबार लगा दिए, हदीसों के अंबार लगा दिए कि अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। आप देखना चाहें तो सफ़ा नंबर 19 पर देखें, ये हदीस मौजूद है कि अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून। समझ रहे हैं। तो अब उसके बाद, अब मैंने इतनी हदीस की आपको दलील दी है, लेकिन मैं और देना चाहता हूँ मजीद। आप देखें इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिरकातुल मफ़ातिह में देखें आप, इमाम मुल्ला अली कारी जिल्द 3, मिरकातुल मफ़ातिह की जिल्द 3 सफ़ा नंबर 549 पर इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वही हदीस नकल करते हैं कि अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इस हदीस को लिखने के बाद आगे ये भी लिखते हैं कि ये हदीस सही है। समझ रहे हैं, ये हदीस सही है। उसके बाद मजीद बहस करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे शब मेराज, तो आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, काइमुन युसल्लून, खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, काइमुन युसल्लून, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पर रुक कर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको गौर कराना चाहता हूँ। आप बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में क्या कर रहे हैं? खड़े हैं। और क्या कर रहे हैं? नमाज़ पढ़ रहे हैं। दो चीज़ देखें, खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये कुछ लोग तावील करेंगे कि अंबिया अपनी जो कब्रों में ज़िंदा होते हैं वो एक दूसरी ज़िंदगी है, वो हयाती ज़िंदगी नहीं, जैसे हम लोग ज़िंदा हैं, हमारे जिस्म में रूह है, तो इस तरीके से ज़िंदगी नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब मैं शब मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहा था तो मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। सही बुखारी की हदीस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं, काइमुन, क़याम में हैं, खड़े हैं, युसल्लून, नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब मुझे बताएं आप, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दो चीज़, एक तो खड़े हैं, एक नमाज़ पढ़ रहे हैं। दूसरा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं में मूसा अलैहिस्सलाम की रूह खड़ी थी या मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म खड़ा था? अभी देखें, आप फैसला हो जाएगा, आप खुद फैसला कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की रूह खड़ी थी कब्र में उनके, या मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म खड़ा था? अगर आप कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म खड़ा था, तो फिर अब जिस्म खड़ा होने के लिए जिस्म में रूह होना ज़रूरी है, लाजिम है। और जिस्म पहले बात सलामत होना ज़रूरी है। एक तो हम कहते हैं ना मूसा यानी अंबिया के जिस्म जो हैं वो सलामत हैं, ये साबित हो जाएगा पहली बात, जिस्म सही था तभी मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। और उसके बाद जिस्म को खड़ा होने के लिए रूह ज़रूरी है जिस्म में, कि रूह जिस्म में हो तब यानी जिस्म खड़ा होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ से साबित होगा कि रूह यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में था, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम फिर ज़िंदा हो गए ना, वो तो हमारी तरह ज़िंदा हो गए। और अगर कहोगे नहीं नहीं वो रूह खड़ी थी, तो सबसे पहले फिर आप मुझे ये बताएं कि रूह के लिए कोई ऐसी शक्ल बताएं कि रूह की कोई ऐसी शक्ल हो, क्योंकि रूह के लिए भी कोई ऐसा खड़ा होना और लेट जाना भी उसके लिए है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, ये देखें आप, ये किताब है, समझ रहे हैं, ये किताब है अल-कामिसुल जदीद। बहरहाल तो ये किताब, इसकी शक्ल है किताब जैसी, समझ रहे हैं, सब दुनिया जानती है किताब जैसी शक्ल है। अब इसको मैं ऐसे रखूँगा तो इसको लोग कहेंगे किताब खड़ी है, इसको लोग कहेंगे किताब खड़ी करके रखी गई है। अब इसको मैं इस तरीके से रखूँ तो लोग कहेंगे किताब लेटा कर रखी गई है, या कहेंगे पड़ी है, किताब पड़ी है।
समझ रहे हैं। इसके यानी दो तरीके से हुक्म आएंगे, ये ऐसा रहेगा तो कहेंगे खड़ी है, इसको ऐसा करेंगे तो कहेंगे लेटी है, पड़ी है। समझ रहे हैं। रूह के लिए भी कोई ऐसी चीज़ बताएं मुझे, कोई ऐसी शक्ल बताएं कि रूह के लिए भी हो कि खड़ी हो और लेटी हो। जैसे ये कलम है, समझ रहे हैं, ये कलम है, ये कलम अगर ऐसे मैं रखूं तो इसको कहा जाएगा ये कलम को इस तरीके से खड़ा करके रखा गया है, और इसको ऐसे रख दूं तो कहोगे कलम पड़ी है या कलम को लिटा कर रखा गया है। तो ये तो कलम की जैसा शक्ल है इसकी, इसलिए इसको इस तरीके से कहा जाएगा। लेकिन रूह के लिए कोई ऐसी शक्ल बताएं कि रूह के लिए कहा जाए कि रूह खड़ी है और लेटी है। रूह का तो एक ऐसी चीज़ का नाम है कि जो जिस्म के अंदर रहती है, जिस्म के शक्ल में नहीं रहती। समझ रहे हैं। जिस्म के शक्ल में रूह नहीं रहती, जिस्म के अंदर रहती है रूह, और जब निकल जाती है तो रूह इंसान के निकलने के बाद इंसान के जिस्म स्टॉप हो जाता है, यानी मर जाता है, वो हिल नहीं सकता, डोल नहीं सकता। तो रूह एक ऐसी चीज़ का नाम है। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं नमाज़ पढ़े, इसका मतलब है जिस्म खड़ा है, और जिस्म खड़ा होने के लिए रूह ज़रूरी है। रूह भी साथ में जिस्म के था तभी खड़े थे आप मूसा अलैहिस्सलाम। और जब रूह जिस्म में मौजूद हो जाए तो इंसान ज़िंदा हो जाता है, जैसे दुनिया में ज़िंदा है। अब एतराज़ कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, कहेंगे अरे जब जिस्म में रूह आ गई तो अब कज़ाए हाजत की ज़रूरत होगी, यानी पैखाना पेशाब की ज़रूरत पड़ेगी, इस्तिंजा की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं मेरे भाई, जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से किसी के रूह किसी के जिस्म में लौटाई जाएगी तो उसका एहतमाम भी अल्लाह तबारक व ताला के ज़िम्मा है कि उसके एहतमाम भी किया जाए कि उसकी किस चीज़ की ज़रूरत कैसी होनी चाहिए। समझ रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों के जिस्म में रूह डालेगा तो उसके इंतज़ामात भी करेगा कि उसे पैखाना लगनी चाहिए या इस्तिंजा लगनी चाहिए या नहीं। समझ रहे हैं। जैसे जन्नत में रूह तो होगा ना जिस्म में, तो बताएं कहाँ जाओगे पैखाना करने, कहाँ तक जाओगे इस्तिंजा करने? नहीं जाओगे ना। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व ताला इंतज़ाम करेगा। और इंतज़ाम क्या है? वो इंतज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि डकार आएगी, खुशबूदार डकार आएगी, खाना हज़म, उसका इंतज़ाम भी अल्लाह करेगा ना, अगर रूह जिस्म के अंदर डाल रहा है तो। ठीक है। उसके बाद आइए, अब मैं आपको गैर मुक़ल्लिदीन के एक इमाम का नाम बताता हूँ, यहाँ से इंड कर दूँगा मैं अपनी बात को। गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े इमाम, गैर मुक़ल्लिदीन इनको बहुत मानते हैं और जरा व तादील के बहुत बड़े इमाम मानते हैं। इनका नाम है नासरुद्दीन अलबानी। समझ रहे हैं। अभी हाल ही में यानी इंतकाल हुआ है। जरा व तादील के इमाम थे। तो नासरुद्दीन अलबानी साहब अपनी किताब अहकामुल जनाइज़ में इसी हदीस को नकल करते हैं कि अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ये जो लाल रुमाल वाला है ये पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं बाकी इसको पता होना चाहिए कि नासरुद्दीन अलबानी कौन है। समझ रहे हैं। सऊदिया इनको बहुत मानते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन बहुत मानते हैं, और इसने एक किताब शायद पढ़ी नहीं होगी अहकामुल जनाइज़। नासरुद्दीन अलबानी यही हदीस को नकल करते हैं, अल अंबिया व हयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, और इसको नकल करने के बाद सफ़ा नंबर 272 पर नकल करने के बाद फरमाते हैं क्या, गौर करिए। अब फरमाते हैं बेइस्नादु जय्यद, बेइस्नादु जय्यद, यानी इसकी सनद बिल्कुल जय्यद है, यानी पक्की है, बिल्कुल दुरुस्त है, आला दर्जे की है, जय्यद है सनद। इस पर कोई कलाम नहीं कर सकता, इसे ज़ईफ़ की हुक्म नहीं लगा सकता, बिल्कुल जय्यद सनद है। अब बताओ मानोगे मेरी बात? अब बताओ मानोगे नासरुद्दीन अलबानी साहब की बात? और हाँ, मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताकर अपनी इस कलाम का, अपने इस बात का इख्तिताम करूँगा कि मेरे इमाम ने जो फरमाया है कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, यानी अल्लाह की कसम, वल्लाह के माने कसम होता है, उन्होंने कसम उठाया, तू ज़िंदा है वल्लाह, यानी अल्लाह की कसम तू ज़िंदा है, अल्लाह की कसम तू ज़िंदा है, 2 मरतबा कहा और कसम भी खाया। ये वल्लाह जो है ये कसम में आता है, वल्लाह यानी अल्लाह की कसम, बिल्लाह ये भी कसम में आता है, यानी अल्लाह की कसम, तल्ला ये भी कसम में आता है। ये कसम के एक कैटेगरी समझ लीजिए। जिसने कसम वल्लाह कह दिया समझ लिए उसने कसम खा लिया, बिल्लाह कह दिया उसने ऊंचे लेवल की कसम खाया, और जिसने तल्ला कह दिया समझ लिए उसने एक कसम की अब इंड कर दी, अब इसके आगे कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, तल्ला। समझ रहे हैं। अब कसम की और कोई गुंजाइश नहीं बचती, मजीद कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तल्ला बिल्कुल इंड हो गई कसम की।
تو میرے امام نے واللہ یعنی اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ یہ بالکل یعنی اس میں شک نہیں ہے، اللہ کی قسم تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم یعنی آنکھیں عالم دنیا کی، میری دنیاوی جو آنکھیں ہیں یعنی جو ابھی میری آنکھیں ہیں دنیاوی آنکھیں، اس سے چھپ جانے والے، یعنی آپ اس سے چھپ گئے ہیں، نہیں دیکھ پاتی، ہماری دنیاوی آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، لیکن آپ زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ قبر میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔